All all right. So we were discussing about the quadratic graph that y is equals to ax square plus bx plus c, where a is positive and a is negative. So when a is positive, so your graph will be like u, and when a is negative, your graph will be like this here form. To sketch, you need two things: x-intercept. To find out the x-intercept, you have to put y is equals to 0. To find out uh, to find out y-intercept, you have to put x equals 0. ठीक है? So now यहाँ पे आप देखते जाएं साथ साथ. For example, there is a question in exam that find out sketch the graph of x square negative 5x plus 6. So examiner will give you the graph in this manner. आपको examiner कुछ ऐसा graph आपको पकड़ा देगा, ठीक है? Now you have to understand this thing that this is x axis and that is y axis. ये x axis है और ये y axis है. So beta, you can see one thing here that a is positive. The value of a is positive, so the graph will be u. I can write one thing, everybody. This is ax square plus bx plus c. So I got the idea that the y will cross the y-axis at c. तो ये c 6 को क्रॉस करेगा ज़रूर. तो ये 6 को क्रॉस करेगा और पॉजिटिव u बनेगा. तो ये बनेगा, ये मैं कहता हूँ लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज प्लस 6. एग्री? फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट? प्लस 6. बेटा सबको आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर है कि नहीं? जी सर, क्लियर है। ठीक है. सर अब प्लस 6, देखो प्लस 6 से मुझे ग्राफ ने क्रॉस करना है. नाउ आई नीड एक्स इंटरसेप्ट. ठीक है, आई गॉट वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, दिस 6 इज वाई वाई इंटरसेप्ट. सो लेट्स फाइंड आउट एक्स इंटरसेप्ट. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5s प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस वाज द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू दिस थिंग. सो इसको 0 के इक्वल पुट करें. सो आपको पता है कि मिड टर्म ब्रेक में 2 3 6 होता है एंड -2 एंड -3 विल वर्क. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0. जिसको मिड टर्म ब्रेक नहीं आती जो बेटा, वो जाके मेरा मिड टर्म ब्रेक वाली क्लासें देखे पहले. x माइनस 2 माइनस 3 इज कॉमन, x माइनस 2 इक्वल 0. x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल 0. तो मतलब एक आंसर आएगा x का +2 और एक आंसर आएगा x का -2. एक आंसर होगा x माइनस 2 इक्वल 0, एक आंसर होगा x माइनस 3 इक्वल 0, x इज इक्वल टू +2 and x is equals to +3. Now I got the idea here that Ramin, that my x-axis, let's say this is my 2 and that is my 3. My u graph will pass from 2 and 3 along with 6. Agree? And I have to make a u in this manner. So first of all, I'm going to start the u like this, make a u and turn it back upwards. Understood everybody or not? So this will be your u graph. ठीक है बेटा, समझ आइए सबको? यस सर। सॉरी यार, उन्होंने उन्होंने मेरा सारा मोमेंटम खराब कर दिया. बेटा ये अब्दुल्ला की, ये किसकी आईडी है अब्दुल्ला? सर रिमूव दैट आईडी सर। सर ये नॉट मेरी है, आवर सॉरी अकाउंट। नाम चेंज कर रहा हूँ. नाम चेंज कर रहा हूँ सर जल्दी मैं. जल्दी रिमूव करो, चेंज करो नाम अपना. सो दिस इज योर यू ग्राफ. सो सर दिस आप इज जरा द, करे, ये चेंज नहीं हो रहा. रीनेम करता हूँ मैं. नाम दर देखो, नाम रखा कौन सा हुआ सर ये यूजर नेम है, सॉरी. है. अच्छा, आइंदा नहीं होना चाहिए. तो ये आपके लिए स्केच आ सकता है. ठीक है, दिस कैन बी योर स्केच. ठीक है. सो दिस कैन बी योर स्केच फॉर द क्वाड्रेटिक ग्राफ्स. तो यहाँ पे हुए हमारे क्वाड्रेटिक ग्राफ खत्म. अभी हम जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री इन क्वाड्रेटिक, इट इज ऑलवेज आस्क्ड. सो लाइन ऑफ सिमेट्री, line of symmetry in quadratic graphs. This is important and this is asked for 1 mark in Cambridge examination. So for example, Ramin, we understood that we had u previously, agree? And we had this graph in the form of this one. Do you agree on this statement? Yes or no? यस सर। So mera beta, जी सर। we had this graph. So this point was 6, this point was 2, and that point was 3. So beta, remember one thing, your turning point is the line of symmetry and this turning point is right here. How can I get the line of symmetry here? I can have the half u here if this is 2 and that is 3. So what you will do, you will add 2 plus 3 which is 5. 5 divided by 2 would be 2.5.
So 2.5 is, let's say, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 box. So 3.5 box would be the line. So La Luna, this line would be the line of symmetry of this graph. Do you agree? Yes. Line of symmetry. So in a cumulative examination, examiner will be asking you what is the equation of line of symmetry. So I can write here x equals positive 2.5 is the line of symmetry, which is technically a vertical line here. Understood everybody or not? For example, just for the sake of example, like my graph is in this position. Everybody, please pay attention because this is important. So this is my y-axis and this is my x-axis. So I am going to draw a graph intentionally in this position. That is my opinion. Let's say this answer is -4 and this answer is +9. Agree? Let's say agree. So I need to draw the line of symmetry. So better, yes, you have to do -4 + 9. Agree? You have to find out the difference. Okay, so you can see one thing, that -4 + 9 will give you +5. Agree? It will give you what? +5. But technically that is not the point. First of all, you need to understand one thing, that is +5 + 5 divided by 2 would be 2.5. But technically speaking, this is approximately from this point to this point. You can see one thing here, from -4 to 19 to 9, sorry, it's 13. It is what? It is 13 digits. Agree, Ramin? Ji, sir. So this is technically finding the difference, and difference in math is what? Last minus previous. So what we do, the last one is 9. Last one is 9. In the previous case, we had both of the values positive. 9 minus into -4, which is equals to 13. 13 divided by 2 would be 6.5. So 6.5 units. After 6.5 unit, you have to plot the line. Agree? So here check. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5. So this is your line of symmetry. This is what your line of symmetry. X 6.5. Understood everybody or not? Yes or no? Yes, sir. 6.5 यूनिट्स. अब एग्जामिनर का है व्हाट इज द इक्वेशन, तो आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं. अब मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाइन लगाया था. लेट्स से दिस इज x इज इक्वल्स टू 1.5. कि ये x इज इक्वल्स टू 1.5 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, व्हिच इज व्हाट? line of symmetry of the graph. And the line of symmetry of the graph will be asked from you and they will give you the graph and आपको graph देंगे. Understood? Agree? Yes, sir. Proceeding with the cubic graphs now. Cubic. सर जी सवाल सर. बेटा. जी जी. सर अगर आगे वो एक क्वेश्चन आए वो के वाला ना, जिसमें फाइंड के को होता है. वो आगे आएगा, वो आगे मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ. डोंट यू वरी अबाउट दैट. ये क्लास अभी स्टार्ट हुई है, ये खत्म तब होगी जब मेरा स्टैमिना डाउन होगा. ठीक है, बस ठीक है आप तमाशा करो, दुआ करो कि अल्लाह हिम्मत दे. इंशाल्लाह. ax³ + bx² + cx + d. It's a cubic graph, so we call them a wavy graph. They are waves. They are waves. ठीक है. ओके, सो व्हेन a इज पॉजिटिव, आपने कुछ याद रखना है. ठीक है, व्हेन a इज पॉजिटिव, तो आपके जो वेव ग्राफ्स बनेंगे वो कुछ इस किस्म के पैटर्न में होंगे कि आपने उसको देखकर पैनिक नहीं करना और आपने अंडरस्टैंड करना है कि सर ने हमें ये चीज़ सिखाई है. ठीक है, तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन a इज पॉजिटिव, द स्टार्ट वुड बी फ्रॉम हियर. दिस वुड बी द स्टार्ट ऑफ वेव and end will be somewhere here. So how this can happen? So this can be something like this. Okay, in this case the value of d is 0. In this case, the value of d is equals to 0 because graph is crossing what? Is crossing x-axis, origin, sorry, 0. origin. अब देखें जी, जब दूसरा केस आ जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू पॉजिटिव होगी. द वैल्यू ऑफ a इज पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा. ठीक है, वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा. सो यू कैन सी दैट दिस इज योर वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, which is the last part of the equation, which is constant. And these three, 1, 2, 3, these three, they are what? They are x intercepts. They are x intercepts.
Understood everybody or not? Yes, sir. Yes or no? Okay, these three are x सर intercept. सर these three are x intercepts, तो फिर ये जो ax के साथ x है या bx के साथ x है और cx के साथ x है, तो ये इसकी वैल्यूज है। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरे नेट में मसला है, आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। सर जी मेरी आवाज आ रही है अब? जी सर अब आ रही जी है। सर। सर क्या हो गया? पता नहीं यार, मेरी ऑनलाइन क्लास को किसी की नजर लग गई है, बस और कुछ भी नहीं हुआ। आज थोड़ा सा सदका करना पड़ेगा। सर ये आपने उस चलें दिन जी, मस्जिद में बहुत तारीफ की। बस यकीन करोगे, बस मैं तो यार बस इस चीज पर खफा हूँ आज कि यार मैं ये चीज डिजर्व नहीं करता। ओके, चलें जी। सर मैं रेसिप्रोकल। एक सवाल कर रहा था, बीच में वो नेट चला गया, थोड़ा ऊपर करें सर। एक मिनट मेरा बेटा, एक मिनट जरा सब्र करो कि मैं जरा। जी आप सवाल करें इतनी देर में, साथ साथ आप सवाल करते जाएं। अच्छा सर, मैं कह रहा था वो जो एक्स इंटरसेप्ट आपने लिखे थे ना, तो सर ये एक्स इंटरसेप्ट 3 है, तो मतलब सर ये वो वैल्यूज होंगी ना, ए एक्स क्यूब होगा तो उसमें एक एक्स आ जाएगा, फिर एक बी एक्स होगा तो एक एक्स उसमें आ जाएगा, फिर एक सी एक्स होगा तो एक एक्स उसमें आ जाएगा, यानी ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें एक चीज आप जरा अंडरस्टैंड करें, आपका कॉन्सेप्ट पूछने की नेचर बड़ी ठीक है। देखिए आपको याद हो कि व्हेनेवर वी एक्सपैंड थ्री ब्रैकेट्स, आपको याद आया एक्सपेंशन ऑफ थ्री ब्रैकेट्स का टॉपिक? बिल्कुल तो जब 3x को हम मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास एक्स क्यूब ही आता था, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, तो एक्स क्यूब के हमेशा हमारे पास थ्री सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 3 सॉल्यूशंस। लेकिन कभी कभी थ्री सोल्यूशन के बजाय हमें टू सोल्यूशन नजर आ रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि ग्राफ जो होता है वो ओरिजिन को पास कर रहा होता है। समझ आई? बिल्कुल सर। ठीक है, इस केस को याद रखें। फिर दूसरी बात ये है कि जब आपका, अच्छा अभी आपका क्वेश्चन आंसर हुआ जो आपने मुझसे पूछा? बिल्कुल सर, हो गया क्लियर हो अच्छा, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं? गया। जी सर। स्टार्ट ही है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोसीडिंग टू द रेसिप्रोकल ग्राफ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल ग्राफ इज y इज इक्वल्स टू 1 ओवर x। ये 1 ओवर x की फॉर्म में आपको नजर आएंगे, ठीक है? दे डू नॉट क्रॉस, दे। सर यस बेटा। सर मुझे क्यूबिक ग्राफ में पॉजिटिव और नेगेटिव क्यूबिक बार ग्राफ में डिफरेंस नहीं समझ आया। अच्छा देखें, पहली बात तो ये क्यूबिक ग्राफ में तो डिस्टेंस की बात नहीं की हमने। हमने ये कहा कि पॉजिटिव वेव्स दो तरीके की बनती हैं। एक पॉजिटिव वेव बन रही है जो कि ओरिजिन को पास कर रही है, और एक पॉजिटिव वेव बन रही है जो कि ओरिजिन को पास नहीं कर रही। इब्राहिम, इज दिस क्लियर? यस सर। मेरा बेटा ऐसे केसेस में हम लोगों को दोनों केसेस में हमें 3x इंटरसेप्ट नजर आते हैं। एग्री?
लेकिन एक केस में, यस जो सर। पहला केस है, इसमें एक केस हमारा ये होता है कि एक्स की वैल्यू जो है ना वो जीरो आ रही होती है। क्या आ रही होती है? जीरो आ जीरो। रही होती है, क्योंकि वो ग्राफ ओरिजिन को क्रॉस कर रहा होता है। किसको क्रॉस कर रहा होता है? ओरिजिन को। ओरिजिनल को क्रॉस। वैसे मैंने रेसिप्रोकल ग्राफ से पहले मुझे यहाँ पे नेगेटिव केस ड्रॉ करना है क्यूबिक ग्राफ का, तो जरा वो भी देख लें एक दफा। बेटा व्हेन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, व्हेन ए इज नेगेटिव, जब ए आपका नेगेटिव होगा तो व्हाट विल हैपन? आप देखोगे वही दो तरह के ग्राफ बनेंगे, लेकिन स्टार्ट जो एरिया है ना वो ग्राफ का कुछ यहाँ से होगा और एंड वेव कुछ यहाँ पे जाएगी। आप ये देखोगे हमेशा, ये अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है? स्टार्ट यहाँ पे आएगा और एंड यहाँ पे आएगा। अब जरा एक चीज को अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा। जब स्टार्ट में करता हूँ वेव ऊपर से, तो देखिए आपकी वेव जो है वो कुछ ऐसी भी बन सकती है। एग्री? एग्री? और जब आपकी वेव स्टार्ट करती है वहां से, तो आपकी वेव कुछ ऐसी भी बन सकती है जहां पे वो ओरिजिन को क्रॉस ना करे, ठीक है? सो दीज टू केसेस कैन कम इन द क्रॉस, कैन कम इन क्यूबिक। क्रॉसिंग origin, crossing origin, does not crossing, does not crossing origin. So examiner will not be asking about the line of symmetries in the cubic graph, क्योंकि cubic graph के अंदर line of symmetry नहीं होती, ठीक है? Examiner will not be asking about the equation of asymptotes, क्योंकि equation of asymptotes भी cubic graph के भी नहीं बनते, क्योंकि cubic graph किसी न किसी मौके के ऊपर जो है वो उस लाइन को टच करेगा। आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ reciprocal graph में कि what are asymptotes। y is equals to 1 over x, ठीक है? This is reciprocal graph, reciprocal graph। तो बेटा रेसिप्रोकल ग्राफ्स क्या होते हैं, जरा प्लीज अंडरस्टैंड करें। मैं आपके सामने एक दो रेसिप्रोकल ग्राफ जो है मैं आपके सामने स्केच करूंगा, ठीक है? और हम लोग जो है उसके ऊपर कुछ वैल्यूज भी लगाएंगे। -5, नहीं, तो स्केच सही करना पड़ेगा, तो -6, -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, +1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5। मेरा बेटा जरा यहाँ पे आई नीड अ टेबल। आपको जब भी रेसिप्रोकल ग्राफ का टेबल कैम्ब्रिज में भी गिवन होगा तो वो कुछ ऐसा होगा, एक्स एंड वाई, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा होगा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5, and there will be a colored here. Agree? Because 1 divided by 0 is math error. Understood? So this is what this is, break in graph, break in graph। बेटा 1 डिवाइड बाय -5 करें, क्या आता है? -0.2 आएगा। यस और नो? बेटा जरा 1 डिवाइड कितना आ रहा है बेटा? वही -0. -0.2। 1 डिवाइड बाय -4 करें तो -0.25। 1 डिवाइड बाय -3 करें तो -0.333 आएगा। 1 डिवाइड बाय -2 इज -0.5, और नीचे 1 डिवाइड बाय -1 इज -1। अब मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा एक और चेंज करता हूँ कि मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को थोड़ा सा मैं बदला देता हूँ, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास -1 आई है। सो मेरा बेटा मैं यहाँ पे +1 ऊपर लिख देता हूँ 4 बॉक्सेस में, और यहाँ पे मैं +1 -1 नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? सो मेरा बेटा -1 इज -0.2, तो मैं कहता हूँ कि -0.2 जो है वो समवेयर, -5 जो है वो -0.2 यहाँ पे, ये -0.5, -0.25, तो 0.2 कुछ यहाँ पे होगा, तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। -4 इज -0.25, -3 इज 0.33 समथिंग, -2 इज 0.5, ये आ गया, -1 इज -1। तो मेरा बेटा आपको एक चीज नजर आ रही है कि ये ग्राफ जो है ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो? अच्छा, अब सेम यस वैल्यूज 1 डिवाइड बाय 1 इज 1, 1 डिवाइड बाय 2 वुड बी एक्सक्यूज मी सर 0.5। जी मेरा बेटा। सर अरहम को जरा अलाउ कर लें सर। ओके, मैं अलाउ करता हूँ उसको। हाँ, आप लोग अपने फ्रेंड से पूछ के बता दिया करें, मैं सब करें मीटिंग
पार्टिसिपेंट्स चलिए साइड पे मैंने छोड़ दिया। अच्छा देन वैल्यूज को प्लॉट करना है तो 1 डिवाइड बाय 5 वुड बी 0.2। अब जरा प्लॉट करते हैं। सो 1 1 मेरा बेटा 1 1 कुछ यहाँ पे आएगा। ओके 2 and 0.5 तो 2 and 0.5 let's say 2 and 0.5 is somewhere here. 3 and 0.3 would be here. That would be 0.25. That would be 0.2. So बेटा if you add all of them, अगर आप इन तमाम के पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा अब जरा यहाँ पे एक चीज को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, कि what are asymptotes here? First of all, try to understand. This question can be asked in the paper. Asymptote in reciprocal graphs. There are two asymptotes here, ठीक है, one is vertical and horizontal, which is included in your Cambridge syllabus only, and only the knowledge of them. Horizontal asymptotes. Remember that asymptote is a line. Tote is a line which is so close to the graph, but graph does not touches it. ग्राफ जो है उसको टच नहीं करता, ठीक है। Asymptote is a line which is either horizontal or vertical. We also have oblique asymptotes, which is slanted asymptotes, but it's not included in IGCSE curriculum, ठीक है। What are asymptotes? Asymptotes in reciprocal graphs, they are vertical and horizontal lines. What does it mean? You have to see the graph very carefully. You can see one thing, that this graph is passing from y-axis and x-axis, but the graph is not touching x-axis or y-axis. Agree? It will be getting closer, getting closer, getting closer. So you can see one thing, that in this case, this line is my horizontal asymptote and this line is my vertical asymptote. Means I'm talking about y-axis. This is my vertical asymptote. Why? Because in some point you will see one thing, that the graph will get closer, and then it will be parallel to x-axis. And in this case as well, the graph will get closer, and then it will be parallel to y-axis. Agree or not, everybody? Abdul Basit. सर फिर इसका वो ग्रेडियंट भी 0 हो जाएगा ना at some ऑब्वियस सी बात है, सो यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करें. सो द वर्टिकल asymptote in this graph would be x equals 0 and horizontal asymptote would be y equals 0, means x-axis. Understood, Arun? Now, moving back to exponential graphs. Okay, and that is our last graph, and after that we can proceed with the past paper thing. सर जी बच्चा इब्राहिम. सर एसिम्प्टोट्स का क्वाड्रेटिक क्यूबिक या लिनियर ग्राफ्स में क्वेश्चन आ सकता है? नहीं उनमें नहीं आ सकता, उनके एसिम्प्टोट्स बन नहीं सकते, ठीक है. यस सर. ठीक है, उनके एसिम्प्टोट्स नहीं बन सकते, ठीक है. और सर वो जो पार्ट था वो स्पेसिमेन पेपर में जिसका एसिम्प्टोट का पूछ रहे थे. हाँ वो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है. ओके सर. ठीक है. द लास्ट वन इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ. एक्सपोनेंशियल graphs. But exponential graphs are of two styles. First one, which is y is equals to a power x. Let's say I'm going to draw. Examiner is asking y is equals to 2 power x. Sketch it. So what I'm gonna do is I'm gonna sketch the graph and I'm gonna take some points here. So x and y. So starting with the मैं -4 से start कर लेता हूँ. तो -4
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. बेटा 2 पावर -4 इज व्हाट? एक्सक्यूज मी सर, या बच्चा? सर इसमें तो कैलकुलेटर में भी एक ऑप्शन होता है ना सर इसके लिए? बेटा होता है ना, वो आगे जाके सिखाऊंगा ना, पहले आप पढ़ लो ये चीजें। चलिए ठीक है सर। अच्छा, मोड एंड 7 दबाएं तो टेबल आ जाता है। ठीक है, 2 पावर -4 बेटा, व्हाट इज 2 पावर -4? इट वुड बी 1/32। एग्री? एंड 1/32 इज हाउ मच बेटा, जरा बता दें जरा सब, एनीवन? 0.0625. 0.0625, थैंक यू। तो ये बहुत छोटी सर वैल्यू मेरे है। में तो आ रहा है, सर मेरे में तो आ रहा है 0.03125। 1/32। यार आपने 1/32 लिखा हुआ है, 2/4 तो 16 नहीं होता मेरे ख्याल से। तो सॉरी, माय बैड यार, इट वुड बी 1/16, इट वुड बी 1/16। तो ये इसका आंसर ठीक है। ठीक है, ओके। 2 पावर -3 would be 1/8, which is 1/8 is 1/8, 0.125. 0.125। अच्छा, तो अभी हम सारे नहीं पुट करेंगे, आप लोग बस कैलकुलेटर में मुझे बता दें। तो 2 पावर -2 इज व्हाट? 1/4। 1/4 माइनस -4 -6 +2 +4 +6। चल मेरा बेटा, एक बच्चा अपना माइक ऑन कर ले। रामीन, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। नाउ प्लीज टेल मी द वैल्यूज। -4 पे क्या था बेटा? -4 पे क्या था बेटा? 0.25. 0.25। 25. चलें, ओके। -4 पे था 0.25। ओके, -2 पे क्या था? सर -2 पे -4 पे तो सॉरी 0.0625 था। तो बस ठीक है, मैंने लगा दिया ना एस्टिमेटेडली। चलें, ये पॉइंट यहाँ पे होगा। 2 पावर 0 वुड बी 1। एग्री रामीन? एंड 2 पावर 2 वुड बी जी 4, तो 4 कुछ यहाँ पे आएगा। बस अब हमें और नहीं चाहिए। So beta, to sketch this graph, see, I'm going to connect this graph with this one. Agree, Ramin? This is exponential graph. This is what? जी Exponential सर। graph. So what will happen, everybody here? What will happen? And how to determine their equation of asymptotes? Because asymptotes will be there only in your reciprocal and exponential graphs. So see what will happen, Ramin? That if you change the powers, here, so you will experience that your graph will go, and it get parallel to this thing. Understood? यस सर। Now you can see one thing here, that if I look at the graph equation here, which is y is equals to a power x, this is an exponential equation. Agree? This is technically, this point would be 1. This point would be 1. Why? Because it is a power x, and anything with power 0 is equals to 1. Every exponential graph will cross y-axis at 1. Agree? If the position of the graph is in negative style, means that what? अगर ये ऐसे आ जाए, that y is equals to a power minus x, तो y is equals to 2 power minus x, तो मेरा बेटा ग्राफ सेम रहेगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लिप हो जाएगा, एंड दिस ग्राफ इज नोन एज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। एक्सपोनेंशियल सर अगर आप गौर करें तो इसमें भी एसिम्प्टोट बन रहा है नीचे। बनेंगे ना, इसमें भी एसिम्प्टोट बनेगा। अंडरस्टूड? ये स्टीपर और स्टीपर होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? स्टीपर सर, ऊपर वाला तो एसिम्प्टोट नहीं बन रहा क्योंकि वो थोड़ा सा टिल्टेड है। वो देखिए, वो तो यहाँ पे वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं बनता। क्यों वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं बनता? अगर आप यहाँ पे बनाओ तो ये थोड़ी देर बाद ये ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाके बेंड होना शुरू हो जाएगा ना, टुवर्ड्स बिल्कुल राइट। बिल्कुल एग्री? बिल्कुल सर, वही। This graph will bend towards a right side, but here it will get parallel to x-axis. Understood? जी सर। हाँ। अगर ये नेगेटिव हो जाए, what will happen everybody? नेगेटिव अगर हो जाए,
तो ये ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियल, दिस ग्राफ वुड बी एक्सपोनेंशियल डिके ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियल डिके वाला ग्राफ बनेगा। अब जरा चेक करना प्लीज, एक्सपोनेंशियल डिके वाला ग्राफ बनेगा। देखो जी, 2 पावर -x, अगर मैं 2 पावर-0 पुट करूं तो 2 पावर-0 बेटा क्या आता है आपके पास? हाँ जी, सर 1। 1 ही आएगा, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाते। ये ग्राफ भी 1 को क्रॉस करेगा। क्या करेगा? 1 को क्रॉस करेगा। ये ग्राफ भी 1 को क्रॉस करेगा, लेकिन क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ है। सो व्हाट विल हैपन? सर पिछली बार स्टार्टिंग नीचे से हुई थी ना, इस बार स्टार्टिंग ऊपर से होगी। इस बार स्टार्टिंग ऊपर से होगी और ग्राफ नीचे एंड होगा, तो हम इसका कुछ ग्राफ कुछ इस किस्म से बना सकेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? जी यस और नो? जी सर, ये वो बिल्कुल वो स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट है कि मतलब अगर ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो नेगेटिव होगा। यस, तो इस चीज को बस याद रखना है थोड़ा सा स्टाइल के अंदर ना, कि यार ओके यार ये चीज भी हो सकती है। अब यहाँ पे वदान, यहाँ पे आपको एक बात नजर आ रही है कि यहाँ पे यू कैन हैव एन एसिम्प्टोट हियर, यहाँ पे अब एसिम्प्टोट बन सकता है। कैसे बनेगा बताइएगा? सर वर्टिकली तो नहीं बन सकता, हॉरिजॉन्टली बनेगा। हॉरिजॉन्टल बनेगा, और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कुछ ऐसा आपको लिखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्राफ इधर आगे जा जाके इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट होता जाएगा। एग्री? यस सर। तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट देखने को मिलेगा, जो आपकी ये लाइन होगी। अंडरस्टूड? यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। अब क्योंकि यहाँ पे रामीन एंड आरोम एंड एवरीवन, उमाइमा, आई होप यू कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर। बेटा यहाँ पे एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि दैट दिस ग्राफ विल गेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस सम टाइम्स इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में इन्फिनिटी पे जाते हुए ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। अब ये नहीं कि आगे जाके ये ऐसे होना शुरू हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता ये। एग्री? एग्री? यस सर। तो ये यहाँ पे आपका हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। व्हाट इफ पेपर में इक्वेशन चेंज हो और सिलेबस में इक्वेशन कुछ ऐसी लिखी हो? अब जरा देख लो प्लीज। y is equals to, for example, 2 power x for example plus 5 plus what? Plus Plus 5. 5. So बेटा जरा सब गौर करें बेटा यहाँ पे। we know that if I put x is equals to 0, so it would be 2 power 0 plus 5, it would be 1 plus 5, and 1 plus 5 is what? 6. 1 plus 5 is what? 6. 1 plus 5 is 6. Technically, this is y is equals to a power x plus c. Technically, this is a power x plus c. Technically speaking, my c is what? My c here in the equation is 5. But in reality, the graph is intersecting. In reality, the graph is intersecting at 6. Understood everybody or not? मेरा बेटा समझ आया सबको? जी जी सर। अब जरा गौर करें यहाँ पे। The graph is intersecting y-axis at 6. मैं कहता हूं कि यार this point is my 6 point. लेकिन according to the equation तो ये तो आपको उस पे जाना चाहिए था। Agree or not? So देखें जी, यहाँ पे आपका ग्राफ स्केच होगा, it is exponential graph like this, and what will happen? Vadan, this line would be your line of asymptote, and how you can represent this c is written as 5. Agree? जी सर। So one box below that, so y is equals to 5. So y Yes, is sir. equals to 5 is the horizontal asymptotes. Agree? Remember that whenever you have equation of like y is equals to a power x plus c, this c is your equation of asymptote. And this question in Cambridge exam, it will appear only for 1 mark, and you will see that whether the
the graph is either exponential or reciprocal, not other than that. Understood? Let सर me ये इसके साथ वो जो पिछला क्वेश्चन आया था तो एग्जामिनर बाकायदा लिखता है कि इट्स एन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एसिम्प्टोट, तो फिर उसको समझ yes, वो आप सर देखेंगे आपका वो क्वेश्चन आपको याद है 3 मल्टीप्लाई विद 2 पावर x क्या था? जरा आइडिया जरा बनाओ, जरा ग्रुप में देखो जरा। एक प्लस मिनट सर वो स्पेसिमेन थे सर। 3 यस मल्टीप्लाई 2 पावर x प्लस 5 था। ओके, अब जरा देख ले बेटा, दिस कंप्लीट इज योर व्हाट, दिस कंप्लीट इज योर ए, ये a है, ये b है, ये पावर x है, ये +5 है। अब मेरा बेटा एक चीज जरा अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे जरा एक चीज अंडरस्टैंड करो, ये अब याद रखना, ए बी पावर x ये सारा लिखा है, c लिखा है 5, ये हो गया जी हमारा इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। आपका क्वेश्चन ये था उस दिन कि आप लोग जब ग्राफ बना रहे थे तो आपका एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ रहा था और y इंटरसेप्ट क्या पे आ रहा था? सर y वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट 8 पे आ रहा था सर। हाँ जी, y इंटरसेप्ट इज व्हाट, put x is equals to 0, put x is equals to what, 0। 0 सर जब इज आप इक्वल x को 0 put, जब y is equals to 3 multiply with 2 power 0 plus 5, so 2 power 0 is 1, 3 into 1 plus 5, 3 ones are 3 and 3 plus 5 is 8, so मतलब यहाँ पे था कि this was y intercept which was 8। Understood everybody or not? Agree? यस यस सर। अब एग्जामिनर ने आपको इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना के दिया हुआ था। एग्री? कुछ इस किस्म से ग्राफ बना हुआ था। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस अब टेक्निकली स्पीकिंग पिछले ग्राफ्स में देखो तो वहां पे +5 आपके पास आ रहा था। एग्री? वो गिवन था। एग्री और नॉट? जी सर। वो गिवन था। यहाँ पे +5 आपके पास ये भी गिवन है, ये वो कांस्टेंट टर्म है जो कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे रखेगी। एग्री? विद द हेल्प ऑफ दिस कांस्टेंट ग्राफ, with the help of this constant 5, either the graph will stay a bit upwards or a bit lowards. Agree? So equation of asymptote here would be a point, and what that point is, that point was your C. Understood? So you have to write y equals +5. So there is a shortcut now to find vertical asymptotes. To find vertical asymptotes, put y is equals to 0. To find horizontal asymptote, put x is equals to 0. That's the technique. बस जस्ट रिमेंबर दैट, आप अपने पास ये नोट डाउन कर लें तो बस आपको आइडिया जो है वो क्लियर रहेगा। ठीक है? अब मैं चल रहा हूँ थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर। मैं एक से दो सवाल करूंगा, तकरीबन सर एक 7। मिनट जरा नोट डाउन कर लें। जी नोट डाउन करें, मैं आप लोगों को ऐसे भी भिजवाऊंगा सब कुछ, डोंट यू वरी अबाउट दैट। मेरा बच्चा, सॉरी, आप लोगों के कुछ बच्चों के मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे रिसीव हो रहे हैं, मैं व्हाट्सएप को क्लास के दौरान तो नहीं देख सकता, तो मैं प्लीज़ आप लोग ज़रा इसको नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें। अभी हम लोग ज़रा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कुछ आईजीसीएसई के क्वेश्चन करूंगा, कुछ ओ लेवल्स के करूंगा, और कोशिश करेंगे कि हम लोग जो हैं आईजीसीएसई के क्वेश्चन ज़रा ज़्यादा करें क्योंकि उनके क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू ओ लेवल्स के। तो ओ लेवल्स के क्वेश्चन फिर आपको ईजी लगेंगे। ठीक है? जस्ट एक मिनट मुझे दें कि ये ज़रा मैं वर्कशीट यहाँ पे आईपैड पे ओपन कर लूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा, सब आराम तहम्मुल से सुने, रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी। पहले हमारा लेक्चर हो गया ऑलरेडी, अब लेक्चर के बाद हमारे क्वेश्चन की बारी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने इकट्ठे किए हैं यहाँ पे। तो मैं देखता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी इस क्लास में हमारी वो जो इंटेंशन है ना सारे टॉपिक को पढ़ने की, वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। चलें जी, देखें यहाँ पे कहता है स्केच द ग्राफ। स्केच द ग्राफ करना है 3x - 4y = 12। तो पहला पार्ट है बेटा, मैं ये साइड पे कर रहा हूँ, किसी को मीटिंग में आना हो तो मुझे बता देना। सो फाइंड x इंटरसेप्ट, अभी पढ़ाया है। x इंटरसेप्ट, पुट y = 0, y को 0 पुट करो। सो y को 0 पुट करते हैं, 3x - 4 × 0 = 12। 3x = 12, so x = 4। Let's say this is x = 4, तो y इंटरसेप्ट फाइंड करो।
वाई इंटरसेप्ट की लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे जाएगी? पुट x इज इक्वल टू 0, 3 into 0 minus 4y is equals to 12, cancelled. Minus 4y is equals to 12. So y is equals to 12 by minus 4. So y is equals to minus 3. So this is minus 3. This is minus 3 and this is positive 4. But this is the sketch of the line. I hope this is clear to all of you. Yes or no? So the equation of Yes, this sir. line is 3x minus 4y equals 12. Question over. तो सर जब हमें x और y इंटरसेप्ट दोनों मिल जाए तो हमें बस assume करना पड़ता है लाइन कि लगानी तो लाइन और लगानी है। ये इधर कहीं है। मैंने क्यों 2 पॉइंट्स देखे हैं। आप कैसी भी लाइन लगा लो, ये एक्स एक्सेस को 4 से और वाई एक्सेस को -3 से क्रॉस करेगी। ये दोनों चीजें लिखोगे तभी 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा है ओके देखे, सर। इंडिकेट एनी इंटरसेप्ट्स विद एक्स एक्सेस। अच्छा जी, अभी पढ़ा है एक्स स्क्वायर -3x-4, क्या ये क्रॉस करेगा? पॉजिटिव यू नेगेटिव यू? हाँ जी, पॉजिटिव यू और नेगेटिव यू। पॉजिटिव व्यू सर। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट क्या है बेटा आपका? नजर आ रहा है, c इज इक्वल टू -4। एग्री? -4 सर, यस सर। ये -4 को क्रॉस करेगा। सो जाहिर सी बात है, यू बनाना है तो ऐसा क्रॉस करना पड़ेगा ना। एग्री और नॉट? यस और नो? यस और नो? यस सर। Definitely no, because I don't know these two regions. Agree? I know that it's u, but I have to wait a while. Why? So now y x intercepts निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटा? x intercepts। तो x intercept क्या है? Put y is equals to 0. So x square -3x -4 equals 0. मिड टर्म ब्रेक कर लो। x square -3x -1x, नहीं नहीं नहीं, 1 4 और 4, -4 और 1 लेना पड़ेगा। -4 x plus 1x minus 4 is equals to 0. X is common, x minus 4 plus 1 is common, x minus 4 is equals to 0. X plus 1 and x minus 4 equals 0. X is equals to -1 and x is equals to +4. बेटा -1 कुछ यहाँ पे होगा, एग्री, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा +4। जी इब्राहिम, क्लियर है मेरा बेटा? तो अब हम स्केच यस कर सर। सकते, ठीक है, क्योंकि पहले हमें ये आइडिया नहीं था कि ये कहाँ से जाएगा, ठीक है। चलो, अब वो कहता है y इज इक्वल टू 6 पावर x, और हमें पता है भाई 6 पावर 0 इज 1। एग्री और नॉट? तो ये 1 से क्रॉस करेगा। एग्री? पॉजिटिव है तो क्या हम कुछ ऐसा ग्राफ बना दें? हाँ जी, 2 मार्क्स। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? यस तो सर। सर जब भी ऐसा कोई एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमारे पास आए तो हमने हमेशा x इज इक्वल टू 0 करना होता है और फिर उसका y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो y इंटरसेप्ट मिल जाता है ना, ठीक है। यस सर। अगर यहाँ पे इब्राहिम लिखा होता ना y इज इक्वल टू 6 पावर x प्लस 5 लिखा होता ना, यस सर। तो जब आप इसमें 0 पुट करते तो आपके पास y इज इक्वल टू 6 आता। क्या आता? y इज इक्वल टू 6। तो फिर आप y इज इक्वल टू 6 पे कर्व को उठाते हैं। समझ आई? जी सर। बस इस चीज का ख्याल रखना है। और ये Actually, जो समझ +5 सकते हो। लिखा, ये जो +5 Okay. लिखा था, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट था, ठीक है। अच्छा, ओ लेवल्स वाले थोड़ा कान बंद कर लो बेटा। डेरिवेटिव इसके साथ कंबाइन हो जाता है। वो कहता है y इज इक्वल टू, ओ लेवल्स वाले बेटा कान बंद कर लो थोड़ी देर, -4/3 x³ प्लस 8x प्लस 5। तो डेरिवेटिव निकालना है dy/dx। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव निकालना है तो ये होगा 3 इंटू -4/3 से मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा पावर नीचे, पावर इसके साथ मल्टीप्लाई, और आ जाएगा x²। डेरिवेटिव ऑफ 8x आता है बेटा 8, तो ये 3 कटेगा, तो ये बन रहा है बेटा मेरे पास -4x², -4, ये क्या हो गया, -4x² प्लस 8। ये आ गया बेटा डेरिवेटिव। IG वाले सुने खाली। फाइंड द ग्रेडियंट व्हेन x, तो डेरिवेटिव के अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -4x² प्लस 8, -4x की वैल्यू -1 है, प्लस 8, -4 इंटू 1 प्लस 8, which is -4 plus 8, which is +4, gradient +4 आ गया। A tangent is drawn to the graph of this fin and the gradient of the tangent is -28. So gradient of the tangent is -28. So we know that our dy by dx is the gradient function, which is like that. They said this is -28. So -4x² plus 8 plus 8 वहां पे जाएगा, तो वो आ जाएगा -28 -8 is equals to -4x²।
minus 4x square is equals to minus 36, minus minus cancel, x square is equals to 9, x is equals to plus minus 3. तो हमें x के दो आंसर्स मिल गए हैं। तो वो कहते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टू पॉसिबल पॉइंट वेयर दिस टेंजेंट मीट्स द ग्राफ। सो ऑब्वियसली बात है कि या तो वो टेंजेंट जो है x इज इक्वल टू प्लस 3 पे मिलेगी या तो माइनस 3 पे मिलेगी। सो x इज इक्वल टू प्लस 3 और माइनस 3। द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट इज गिवन माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो ग्रेडियंट हमें टेंजेंट का गिवन था, तो हमें x के दो कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्लस 3 माइनस 3। अब प्लस 3 माइनस 3 को कहाँ पुट करना है, वो हमने यहाँ पे पुट करना है। अंडरस्टूड? यस सर, इससे हमें y की वैल्यूज आ जी, तो y की वैल्यू आ जाएंगी, तो y1 आएगा 8 प्लस 8 सॉरी 5 प्लस 8 इंटू 3 माइनस 4/3 इंटू 3 क्यूब। बताओ क्या आता है भाई, और y2 क्या आता है? 5 प्लस 8 इंटू माइनस 3 माइनस 4/3 इंटू माइनस 3 क्यूब। जी, पहला क्या आ रहा है? पहला क्या आ रहा है बेटा? हेलो बेटा, जरा कोई बच्चा बता दे यार। 27 डिवाइड बाई 3 इज 9। So 5 plus 24, 29. 29 minus 36. So 29 minus 36 is minus 7. हरी अप एवरीबॉडी, यार कोई बच्चा तो बता देना, कैलकुलेशन कर रहा है कोई कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है सर। सबको? एक मिनट दे, मैं कर रहा हूँ सर। बेटा मैंने पहले निकाला आंसर। 5 प्लस 8 3 24, तो 29 आ रहा था। और 3 क्यूब बनता है 3 स्क्वायर, 4 9 36, तो 29 माइनस 36 इज माइनस 7। पहले वाला माइनस 7 आ One रहा है। 7 and the next one is 17. 17 ओके। सो व्हाट डज इट मींस? व्हाट डज इट मींस? ओ लेवल्स वाले ये सुन सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट नेगेटिव में है, तो ये बेटा ये ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। एग्री? एग्री? एंड वी नो दैट दिस इज नेगेटिव टेंजेंट। एग्री और नॉट? एंड दिस कैन आल्सो बी अ नेगेटिव टेंजेंट। एग्री? So they are saying that this graph can intersect x-axis at these two positions. So हम लोगों ने वो कहता है कि कहाँ पे वो ग्राफ के साथ इंटरटेन कर रहा और टच कर रहा होगा, तो हमने वो फाइंड आउट किया। Find the coordinates of the two possible points where this tangent meets the graph. So यहाँ पे ये this point it can be 3 minus 3 and minus 3 and positive 17. तो minus 3 and positive 17 कुछ यहाँ पे आएगा, और प्लस 3 एंड माइनस 7 ये कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, प्लस प्लस 3 एंड माइनस 7 नीचे आता है। तो ये दो पॉइंट होंगे जहाँ पे ये टेंजेंट जो है वो ग्राफ के साथ मिल सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? देखो, अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम लोग इसको करें ना स्केच, थोड़ा सा स्केच करें, तो चलो मैं आगे करके दिखाऊंगा फिर। अच्छा, ओ लेवल्स वालों, ग्राफ के अंदर ये चीज भी आती है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ कहते हैं, या इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री के पेपर में पढ़ाऊंगा। चलो भाई ये देख लो। अच्छा ये भी छोड़ो, ये ग्राफ और प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अच्छा जी, मेरा बेटा यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है एक्स 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 क्यूब बनेगा, तो दिस इज गिवन हियर। तो हमें पहले इस टेबल को कंप्लीट करना है, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन हियर। सो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2। सो 2 स्क्वायर इज 4, 9 माइनस 2 इज व्हाट? 7, and 7 4s are 28. So this would be 28. Complete the table complete हुआ। On the grid opposite draw the graph. Find the values of x when this is equal to this. Okay, अब कैलकुलेटर में कैसे करते हैं जरा गौर करें। कैलकुलेटर में हाउ टू प्लॉट वैल्यूज, टेबल कैसे बनाते हैं, सब जरा गौर करो। 1-2 मिनट का मैं रेस्ट ले लूं तब तक। अभी कोई किसी का कोई सवाल है तो पूछता जाए जरा, साथ साथ मजा आता है फिर। 31 जनवरी 1 और 2 फरवरी। Anyone having any question? अच्छा, No, sir. look at the screen everybody. This is pressing more button and this can be your table. टेबल 9 पे मेरे पास 9 पे टेबल आ रहा है, आपके पास कैलकुलेटर में 7 पे होता है मोड और 7। मैंने 9 दबाया, वो कहता है एफ ऑफ एक्स डालो, मैं एफ ऑफ एक्स डाल रहा हूँ। अल्फा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 9 माइनस एक्स 9 माइनस अल्फा और ब्रैकेट एक्स आ गया, ब्रैकेट क्लोज हो गई, आंसर इक्वल दबा दिया। स्टार्ट ऑफ द टेबल इज 0 एंड एंड ऑफ द टेबल इज प्लस 9। स्टेप 1 इज फाइन बिकॉज 1 2 3 4 5 ये 1 जंप है।
देखिए जी मेरे पास टेबल आ चुका है, 0 0 1 8 एंड 2 28 हमने सही प्लॉट किया। अब वो एग्जामिनर कहता है कि इसको स्केच करो। अब कैलकुलेटर मेरे काम आएगा क्योंकि मैं यहीं पे इसको देख लूंगा। सो 0 0 1 8, अच्छा 2 एंड 28, 2 एंड 28 30 से थोड़ा नीचे, 3 एंड 54 54। मोहित क्लास में हो कि नहीं? 4 इज 80, 5 is 100, 6 is 108, 108। Arun, are you in the class? तो रामीन क्लास में है बेटा आप लोग के नहीं? 8 is 64। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको कि नहीं? जी सर। यस सर, आवाज सर आ रही है। सर। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही लगा हूँ। क्लास नहीं में कितने सर, आप पार्टिसिपेंट्स अकेले हैं? नहीं है, हम हैं आप। सर हाँ 18 पार्टिसिपेंट्स है। अच्छा, बस मेरे ख्याल से जिन जिन के मसले हल हो गए हैं वो चले गए हैं। चलें जी, देखें जी ग्राफ बना रहा हूँ आपके सामने। रूलर नहीं रखना। ये हो गया जी, ग्राफ बन गया आपका। अच्छा पीछे एक पार्ट रह गया था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 44 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा वॉल्यूम आपका वाई एक्सिस है, सो 44। मेरा बेटा 44 कुछ यहाँ पे है, तो ये पेपर में लाइन लगाना। अच्छा 44 इस तरह डॉटेड लाइनें लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे मेरा बेटा वैल्यू आ रही है 2.6 और यहाँ पे मेरा बेटा वैल्यू आ रही है 8.4। तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज जो हैं ऊपर लिख दूंगा और ये आपकी अपनी हो सकती है मेरी अपनी। तो ये हो गया 2.6 और ये हो गया 8.4, ठीक है। चलें जी, कैलकुलेटर साइड पे हो गया। अच्छा अब एग्जामिनर कहता है मुझे, एग्जामिनर मेरा बेटा मुझे कह रहा है, ठीक है, इशाल शो दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस थिंग। ठीक है, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड जो है ना वो ये है। बेटा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आपको फॉर्मूला जो है ना वो याद करना है। वो फार्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जो क्यूबॉइड ऊपर गिवन है उसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो एक्स है, लेकिन जो हाइट है वो 9 माइनस एक्स है। सो लेंथ एंड ब्रेथ इज एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 9 माइनस एक्स प्लस height is 9 minus x into x which is L. Multiply करो 2 into x square plus 9x minus x square plus 9x minus x square। सो मेरा बेटा मैं ये ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से पहले x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को काट सकता हूँ। तो 2 ब्रैकेट 9x प्लस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। मेरा बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू 18x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 36x माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है, जो कि हमने शो करना था। तो रिजल्ट इज शोन। क्लियर है मेरा बच्चा सबको कि नहीं यार? लालूना, इज दिस यस क्लियर सर। टू यू? समीहा? Okay. Then they say that find the surface area when the volume of the cuboid is maximum. Beta, volume of the cuboid is maximum at this point. Yes or no? Which is the turning point of the graph. So maximum volume will be here. And the maximum volume यस is सर। here when we have 108 is the maximum volume. And the value of x is 6. So the value of x is what? उमाइमा यहाँ पे x की वैल्यू 6 है। तो जो एक्सप्रेशन हमने नीचे बनाया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 36x minus x square, which is 36 times 6 minus 6 square। 36 times 6 क्या उतना कितना होता है बेटा? 216 minus 36 and 216 minus 36 करें क्या आता है बेटा? चलो ना यार। 180। So 180 is my maximum। अच्छा नहीं, यहाँ पे गलती हो गई है, आप में से किसी ने भी पॉइंट आउट नहीं किया। मैंने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया है एक्सप्रेशन लिखते वक्त। एक्सप्रेशन था 36x माइनस 2x स्क्वायर। 36 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर। चलें जी अब कर लें, 216 माइनस 72 हो जाएगा 144।
सर यस। ओके 144 इज द आंसर। चलो जी, क्वेश्चन हुआ ओवर। ओ लेवल्स वाले, आईजीसीएसई वाले, दोनों सुनो। द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। हमें ये फंक्शन का पता ही नहीं है। f of x has is equals to k has two solutions in the interval this thing। अब यहाँ पे देखो f of x जो है वो y की जगह पे लिखा हुआ है, सब गौर करो बेटा। इसका मतलब है y इज इक्वल टू k। इसके दो आंसर्स आने चाहिए। क्या आंसर चाहिए? दो आंसर्स आने चाहिए। अब मेरा बेटा दो आंसर्स कहाँ पे आ सकते हैं, जरा गौर करना प्लीज। मेरा बेटा यहाँ पे जरा गौर करो। यहाँ पे y की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 7 है, तो मेरा बेटा क्या यहाँ पे 8 और 9 आएगा दरमियान में? आएगा कि नहीं? बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ पे 5.5 है तो इसके नीचे 5 होगा, एग्री। और ये यहाँ पे y की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा, एग्री और नॉट? अग्री सर। अग्री और नॉट? अब इसका मतलब ये है टू टू सॉल्यूशंस कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं मेरा बेटा? टू टू सॉल्यूशंस यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो है, जरा एक एक चीज अंडरस्टैंड करो। अच्छा, यहाँ पे जरा ग्राफ को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि यहाँ पे आता है कि नहीं। देखो 9 के ऊपर अगर मैं लाइन लगाता हूँ तो एक यहाँ पे टच किया, एक यहाँ पे टच किया, और ये आगे भी जाके टच करेगा, एग्री इब्राहिम? जी सर। अच्छा, 8 पे अगर लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो रहेगा, एग्री और नॉट? लेकिन अगर मैं 5 पे ड्रॉ करता हूँ तो वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो ने नीचे नहीं आना। ये ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, उसने नीचे नहीं आना। तो क्या यहाँ पे टू टू इंटरसेप्ट बनते हैं? बनते हैं यहाँ पे, एक दो, एक दो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? कहते हैं राइट डाउन अ पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ के। अ पॉसिबल, एक लिखनी है आपने, तो वो आपका 4 हो सकता है और वो आपका 5 हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी लिख लो। मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू 4। एट y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, y कैन हैव टू आंसर्स व्हिच इज यू कैन, मैंने एक्सप्लेन किया अभी आप लोगों को। अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? जी, यस सर। अच्छा। कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जे। अब उन्होंने एफ ऑफ एक्स को जे बना दिया है। जे का मतलब है जे इज इक्वल टू वाई, मतलब वाई इज इक्वल टू जे। अब वो क्या कहते हैं? हैज नो सॉल्यूशंस इन द इंटरवल। यहाँ पे कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा उसका, ठीक है। तो राइट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी। तो मेरा बेटा जरा एक चीज अंडरस्टैंड करो कि अगर मैं यहाँ पे मेरा बेटा जरा सबको नजर आ रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे जरा ये मिटा देता हूँ, ठीक है। जरा मेरा बेटा एक चीज अंडरस्टैंड करें कि नो सोल्यूशन चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे टर्निंग पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या यहाँ पे कोई सोल्यूशन आएगा? एक सोल्यूशन आएगा, नहीं एग्री? सर। एक सोल्यूशन आएगा। और यहाँ पे भी एक ही सोल्यूशन आएगा, एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? टैंजेंट है ना कि नहीं? आपको आइडिया हो रहा है कि मैं कह रहा क्या हूँ? नो सर। अच्छा, अब जरा गौर करें प्लीज। ये कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जे, मतलब वाई इज इक्वल टू जे की बात हो रही है, मतलब वाई एक्सिस की बात हो रही है। कहता है हैज नो सॉल्यूशंस इन द इंटरवल, मतलब कि ये सॉल्यूशंस के साथ जो है ना, वो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? कोई कोई सोल्यूशन सॉल्यूशन, नहीं है। कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज अंडरस्टैंड करें, ये वेव जो है, दिस वेव इज राइट हियर, ठीक है। अब ये क्योंकि हमारे पास, याद रखें, ये वेव नहीं है, डबल डबल वेव बन रही है। पावर 4 का ग्राफ या पावर 5 का ग्राफ हो सकता है आपके पास, ठीक है। सर यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे देखो एक वेव तो यहाँ पे बनी, फिर आया, फिर टर्न कर गया, एग्री और नॉट? टेक्निकली यहाँ पे एक दो तीन टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। कितने टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं? 3। तो इसका मतलब है कि ग्राफ ऊपर जाके फिर नीचे चला जाएगा, एग्री? यस सर। मतलब ये इस तरीके से फ्लक्चुएशन लेता रहेगा वेव्स की फॉर्म में, एग्री? यस सर। यहाँ पे आप ये चीज अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे वो कहता है हैज नो सॉल्यूशंस। if I draw these two red lines, I know that the equation of this first red line is y is equals to 3, and equation of this second red line is y is equals to 10। y is equals to what? 10। 10। जी, समझ आया बेटा सबको कि नहीं? एग्जामिनर कहता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ a and b where j is less than a, मतलब y is less than a।
तो आप मुझे बताएं कि लेस देन ए कौन सी वैल्यू हो सकती है। आराम से खैर डिस्कशन करो एक दूसरे के साथ, माइक ऑन करो, डिस्कशन करो, तभी जाके आप लोग इसको सीखोगे। सर कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? The question is, it says that y is less than a will have no solution and y is greater than b will have no solution. जी बेटा आपके सामने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कोई भी बता दे, कोई मसला नहीं, कोई भी बता दे। एनीवन? देखें, आपके आपको एक आइडिया मैं यहाँ पे डेवलप करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने लिख चुका था y is equal to 3. Anything below 3 will have no solution and anything above 10 will have no solution. Understood everybody or not? So यस सर। इसका मतलब है j less than a, तो less than a क्या है? less than 3 and j greater than 10 will not have no solutions. No सर solutions. ए इज तो इक्वल्स सर टू 3 इसका आ जाएगा सर, और बी इज जी इक्वल्स 10 आ जाएगा सर। जी बिल्कुल, समझ आई कि नहीं? लेकिन सर वो तो मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहे हैं। नहीं, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी, और उन्होंने इनइक्वालिटी भी दी हुई है ना, ठीक है? यस सर। तो मैक्सिमम मैक्सिमम जो है ना, देखिए मेरी बात सुनिए, मैक्सिमम आपकी जो वैल्यू है ना ए की, ठीक है, वो 3 तक जा सकती है, ठीक है? हो सकता है ये ग्राफ 3 से पहले ही 3 के ऊपर टच टच किया है, लेकिन 3 से फिर नीचे तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। यस सर। और इन्होंने इनइक्वालिटी में आपको कहा हुआ है कि j इज लेस देन a, तो j इज लेस देन 3, इट कैन बी 2.9। एग्री? जी सर। अगर ये मुझे कहता ना कि फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो मैं -2 +2 और 11 लिखता, फिर समझ आई? यस सर। फिर मैं +2 और 11 लिखता, इंटीजर नहीं मांगा उन्होंने, तो इट कैन बी 2.9, इट कैन बी 2.8। अगर इंटीजर मांगते तो हम लोग लिखते +2 और 11। आगे चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स। अब देखें पावर 6 का ग्राफ है, सो ओ लेवल्स वाले जो हैं जरा थोड़ा कान बंद कर लो अपने, मैं 1 मिनट के अंदर आईजी वालों को जरा रिवाइज करा दूं थोड़ा सा। तो dy/dx लेते हैं टर्निंग पॉइंट के लिए, तो इट वुड बी 6x5 माइनस 6 5 आर 20, 30x 30x4। सो पुट द डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। आप डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें सबसे पहले आप कॉमन ले लें, तो 6x4 इज कॉमन, तो अंदर आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है 6x4 इज इक्वल्स टू 0 विच इज x इज इक्वल्स टू 0, एंड x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 विच इज x इज इक्वल्स टू +5। तो ये 0 आ गया, ये 5 आ गया। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो y इज इक्वल्स टू 0 पावर 6 माइनस 5 माइनस 6 इंटू 0 पावर 5, तो द आंसर वुड बी 0। और y इज इक्वल्स टू 5 पावर 6 माइनस 6 इंटू 5 पावर 5। तो मेरा बेटा बताइएगा आंसर क्या आता है जरा? कोई कैलकुलेटर कर ले बेटा, अयान कैलकुलेटर कर लो बेटा। कैलकुलेटर कर लो बेटा कोई बचा। 5 पावर 6 क्या होता है, और मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में। सर -3125। -3125 इज द सेकंड टर्निंग पॉइंट, ठीक है? 5 मार्क्स। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो है सर आप लोग खुद सर ट्राई करो जी बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जल्दी बोलें। सिलेबस में लिखा हुआ है, हम्म। सिलेबस में लिखा हुआ है फाइंडिंग टर्निंग पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सर इसका क्या हाँ जी, मतलब है? वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए आपको टर्निंग पॉइंट्स में निकालना सिखाऊंगा, लेकिन अभी अभी आप लोग इस चीज को मत सीखें, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है ओ लेवल्स के, ठीक है? सर है। आई जी, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। टर्निंग पॉइंट्स आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकालने हैं, इस तरह नहीं, डेरिवेटिव नहीं है आप लोगों का, ये समझ आई? अच्छा नहीं सर, मैं टर्निंग पॉइंट्स बाय स्क्वायर की पूछ रहा हूँ। हाँ वो अभी नहीं, देख लें भाई ग्राफ बनाना। अब मैं ये एक क्वेश्चन कराता हूँ, और उस एक क्वेश्चन के अंदर टेंजेंट वगैरह होना चाहिए, तो एक मैं क्वेश्चन वैसा ढूंढ लूँ ताकि बस वो हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाए।
बस ये क्वेश्चन अच्छा है। चलें ये टेबल कंप्लीट करें, मेरा बचा जरा मेरे लिए, शाबाश हरी, कंप्लीट द टेबल फॉर मी। एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x कैलकुलेटर में डालो, स्टार्ट करो टेबल को -3 से, एंड कर दो +3 पे, स्टेप 1 ले लो, क्योंकि टेक स्टेप 1, वाई बिकॉज -3 -2 एंड +3 इज इनकम्प्लीट, बाकी कंप्लीट है, तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। तो -3 पे क्या आ रहा है बेटा? व्हाट इज दैट -3? जी जुरेज। 9.5 -3 इज 9.5 प्लस 9.5, राइट? -2 क्या है बेटा? 4.75 4.75 और प्लस आखिरी वाला 8.5 8.5। अच्छा, मैं आखिर में इसकी कंक्लूजन लिखाऊंगा, आखिर में क्लास लीव नहीं करना। -3 इज 9.5, तो -3 यहाँ पर है और 9.5 ऊपर है, तो ये हो गया। -2 इज 4.75, -2 इज 4.5, 4.75 कुछ यहाँ पे, -1 इज 2.5, -1 इज 2.5, -0.5 इज 3.3, -0.5 इज 3.3 कुछ यहाँ पे, -0.2 इज 7.5, -0.2 इज 7.5, तो 7.5 ऊपर चला गया। ठीक है इब्राहिम? जी सर। -3 is 9.5, -4 is 4.75, -1 is 2.5, -0.5 is 3.3। ये पॉइंट गलत लगाया मैंने। सर मेरा एक सवाल है। जी जी बोले, मैं सुन रहा हूँ बेटा। सर ये जो स्टेप है इट्स इरेगुलर, मतलब पहले 1 का गैप है, फिर 0.5 का, फिर बेटा 0.3 का, हम तो लोगों ऐसा ने स्टेप। वी वी आर नॉट कंसिडरिंग दीज वैल्यूज बिकॉज दे आर ऑलरेडी कंप्लीटेड। अच्छा, अच्छा। इसीलिए मैंने 1 स्टेप ले लिया। अब आप ऐसे करें, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करें, ठीक है? अब पॉजिटिव साइड पे जाते हैं। 0.2 इज -7.5, 0.2 ये है, -7.5 कुछ यहाँ पे होगा, ओके। 0.5 is -2.8। इशाल बेटा समझ आ रही है? 1 is -0.5 and 2 is 3.3, 3.3 कुछ यहाँ पे, and 3 is 8.5। सो इब्राहिम देख रहे हैं ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा बन रहा है, जी सर। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल के साथ कुछ ऐड हुआ है ऊपर, देखो इक्वेशन में, देखा है? जी रिसिप्रोकल के सर। साथ देखो, रिसिप्रोकल और एक्सपोनेंशियल कंबाइन हो गया है, ठीक है? तो ये पीसेस में बनेंगे फिर, ठीक है सर क्यूबिक और रेसिप्रोकल नहीं कंबाइन? बेटा? 3 देखो ना, एक्स स्क्वायर -3/2x, टेक्निकली 3/2x इज रेसिप्रोकल, एग्री? यस सर। एक्स स्क्वायर इज क्वाड्रेटिक, एग्री? यस सर। समझ आई कि नहीं? ठीक है, यस सर। यस। सो मैं वहां पे आपको एक आइडिया दे रहा था। बाय ड्राइंग सूटेबल लाइन, बाय ड्राइंग सूटेबल लाइन राइट योर क्वेश्चन फर्स्ट। स्टेप 1, क्वेश्चन लिख लो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3/2x, एक्स स्क्वायर -3/2x बाय ड्राइंग सूटेबल लाइन। सूटेबल लाइन मेरा बेटा आपको नजर आ रहा है कि दिस थिंग इज इक्वल्स टू y इन द क्वेश्चन। वो क्या y है? 24/5 -2x, तो y is equals to -2x plus 24/5। बेटा टू ड्रॉ अ लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स, मैंने अभी सिखाया है स्केच करना, ठीक है? तो बस x y, x की जगह पे मैं 0 डालता हूँ, ठीक है? x की जगह पे 0 डालें तो 24/5 आ जाएगा। 24/5 इज हाउ मच बेटा? 5.8, 4.8 प्लीज। 24/5 4.8 क्या आता है सर। बेटा? 4.8। अच्छा, और x की जगह पे 1 डाल लो, तो आप लिखो -2 + 4.8, तो 2.8। चेक कर लें बेटा यस सर, प्लीज। 2.8। अच्छा, 0 and 4.8, 0 and 4.8 is this point, and 1 and 2.8, तो 1 and 1 ये है और 2.8 कुछ यहाँ पे है,
1 and 2.8. Beta, you can see that if I draw a line here 1 and 2.8, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊं इशाल, तो रूलर के जरिए मुझे लाइन लगानी है। तो जब मैं दो ग्रीन डॉट्स को ज्वाइन करूंगा तो these 2 points and the line joining y-axis, it intersect at 2 points, and the examiner is asking me those two answers. So let's see, this is my answer 1 and this is my answer 2. इसमें रेंज होती है, अच्छा, तो 0.12335 माइनस 0.35 और ये प्लस में है आयान 1.55. एनी प्रॉब्लम? 4 marks. Then they say that this equation can be written in the form of this one. So algebraic manipulation है x square minus 3 by 2x is equals to 24 by 5 minus 2x. So बेटा बटरफ्लाई मेथड सिखाया हुआ है आप लोगों को मैंने, बस सिंपल इज दैट। बटरफ्लाई मेथड कर लो, इधर कर लो 2x, यहाँ आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा 5, 24 माइनस एन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये आ जाएगा 10x क्यूब माइनस 15, और 2x मल्टीप्लाई होगा 24 से तो ये आ जाएगा 48x माइनस 2 10 20x स्क्वायर। इनको इधर फेंक दो, 10x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 48x इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लो, 10x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर माइनस 48 minus 15 is equals to 0. They are equals to ax cube plus bx square plus cx 48x, thank you, plus cx minus 15 is equals to 0. Beta, now the examiner is asking me what are the values of a and b. The value of a is 10, value of a is 10, value of b is 20, value of c is minus 48, and value of minus 15 is written on its own place. A is 10, b is 20, and c is minus 48. Done? समझ आया बेटा सबको? अच्छा, ड्रॉ टेंजेंट रह गई है खाली, या ये कर लेते हैं बस आखिरी। जरा जल्दी से कंप्लीट करो यार ग्राफ, प्लीज टेबल कंप्लीट करो, मैं भी थक गया हूँ यार। आई नो दैट आप लोग भी थक गए, लेकिन मेरी भी हालत हो गई है खराब। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, 6 to 7, 7 to 8। कंप्लीट द टेबल यार, जल्दी से कंप्लीट करके बताओ यार। -1 और 1 और 3 की जगह पे क्या आता है? उमाइमा बेटा, सर जी बेटा। सर एक मिनट सॉरी। उमाइमा बेटा जल्दी जल्दी वैल्यूज बताओ, मैं चैट ओपन कर दिया ताकि मुझे नजर आए यार। वैल्यूज बता दो बेटा जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, टेबल कंप्लीट करो। अच्छा, पहले 5 आ रही है उमाइमा ने कहा, दूसरा -3, और लास्ट वन इज 21। 3 मार्क का टेबल कंप्लीट हुआ। ग्राफ को जल्दी से स्केच करना है, -3 एंड +3, -3 है, तो -3 तो -1 2 3, -3 -2 एंड +6, सो +6 कुछ यहाँ पे, -1.5 एंड 6.4, 1.5 एंड 5 6 6.4 कुछ, 6.4 कुछ यहाँ पे, 0 -1 is +5, -1 is +5, 0 is 0, okay. 1 is -3, 1 is -3। इब्राहिम समझ आ रही बेटा? 2 is +2। यस बेटा आप में से जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं, आज उनका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए बस। 1.5 मिस हो गया, 1.5 is -1.29, 1.5 ये -1.29 का 1, 1.2 1.29 कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है इब्राहिम, क्लियर हो गया तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स की नहीं? 2.5 is 9.4। जी सर, सिर्फ टेंजेंट रह गया। बस वो अभी करता हूँ ना, 3 and 21 ताकि खत्म हो जाए, 3 and इसी टेंजेंट की खातिर तो मैंने ये ग्राफ बनाई है। देखें जी, ये वेव बना है। अगेन अयान नजर आ रहा है मेरा बेटा? जुरेज यस सर। देखें जी,
ये ग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है। हम ग्राफ नहीं बनाना चाहते थे, हमारा काम कुछ हो रहा है। यूज योर ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है पहले वो तो क्वेश्चन लिख लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। बेटा दिस इज माई क्वेश्चन, तो लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 विल बी ऑन दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 यही होता है, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे है -2.8, यहाँ पे है 0, और यहाँ पे है 1.8। -2.8, 0 और 1.8। इशाल मेरा बच्चा समझ आया कि नहीं यार? इशाल, अच्छा, बाय ड्राइंग सूटेबल टेंजेंट फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द ग्रेडियंट एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, बेटा x इज इक्वल टू 2 ऑन कर्व, ऑन कर्व। तो आपने करना क्या है, x इज इक्वल टू 2 कर्व के ऊपर। तो कर्व के ऊपर x इज इक्वल टू 2 जो है मेरा बेटा, वो ये पॉइंट है। आपने यहाँ पे पेंसिल रख लेनी है, विद द हेल्प ऑफ रूलर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपने रूलर को ऐसे रखना पड़ेगा ताकि वो टेंजेंट लगे। क्या लगे बेटा? टेंजेंट लगे। इब्राहिम सुन रहे हैं कि नहीं? जी सर। तो टेंजेंट, टेंजेंट लगाने के लिए क्या करूंगा मैं, जस्ट एक डायरेक्ट एक लाइन खींचूंगा यहाँ पे। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस सर। अब बेटा याद रखो, यस ये सर। इस ऐसी ऐसी टेंजेंट का ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप टेक 2 पॉइंट्स ऑफ योर चॉइस एंड पुट इन द फॉर्मूला, एंड देन द सेकंड थिंग इज कि आप 2 पॉइंट्स ना लो और आप राइज और रन निकाल के आप एस्टिमेट करो। व्हाई? बिकॉज इशाल मेरा बेटा, दिस इज रिटन हियर दैट यू हैव टू एस्टिमेट द ग्रेडियंट, ठीक है। डोंट फाइंड द करेक्ट वन, ठीक है। तो आपने ग्रेडियंट को एस्टिमेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ ताकि मेरा ग्रेडियंट सही आ जाए, क्योंकि अब यहाँ पे प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर नहीं तो मैं एक आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूँ, और उस ट्राइंगल की हम लोग वैल्यूज को निकालते हैं कि राइज क्या है और रन क्या है, ठीक है। मेरा बेटा राइज जो है वो मेरे पास कुछ 10 यूनिट्स आ रहा है, और रन क्या है बेटा, यहाँ पर आ रहा है बेटा 2.6, और यहाँ पर है बेटा 1.9। तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 0.7। कितना आ रहा है? 0.7। 0.7। सो राइज जो है मेरे पास 10, और आंसर में रन जो है वो 0.7। ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, इसीलिए प्लस का साइन लगा देता हूँ यहाँ पे। अगर ये लाइन कुछ ऐसी होती विशाल तो मैं नेगेटिव का साइन लगा देता। 10 डिवाइड बाय 0.7 करें, क्या आ रहा है आंसर बेटा? स्टीप है काफी है। सर 14.285। 14 पॉइंट 285। तो 28, तो हम 3 लिख देते हैं, बात खत्म। ओके बेटा, अब जरा ये लास्ट वन जरा सब सुन लें, स्पेशली उमाइमा, आप, इशाल, आप। Write down the largest value of k so that the equation is equals to k has 3 solutions. So beta k is y. Y is equals to x cube plus x square minus 5x, and y should have 3 solutions. 3 solutions. और ये इंटीजर होना चाहिए। ग्राफ पे आ जाओ मेरा बेटा, जरा सब गौर करें। इब्राहिम, पे अटेंशन। See at this point 2 solutions or not? Yes or no? यस सर। That's tangent. That is what? टेंजेंट। मेरे पास यहाँ पे टेंजेंट आ रही है, मेरे पास यहाँ पे टेंजेंट आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज दिस पॉइंट। ये है 6, ये है 7, ये है 7.5। ये कितना है बेटा? 7.5। तो क्या 7.5 से नीचे 7 होगा? जी सर। और आप देखो, अगर मैं 7 पे लाइन लगा दूं तो इसके 3 आंसर्स आएंगे आपके पास, आएंगे कि नहीं इब्राहिम? यस सर। तो मेरे पास ये जो अकॉर्डिंग टू माय ग्राफ, दिस इज y इज इक्वल टू 7, एंड दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू a curve can have and 3 solutions, so k is equals to 7। समझ आया मेरा बेटा कुछ अरे कि नहीं आखिरी यार? पार्ट जरा एक बार फिर स्किम कर सकते हैं? मेरा आखिरी बेटा वो कह चार्ट रहा है कि फाइंड राइट डाउन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k सो दैट इक्वेशन दिस इज इक्वल टू k हैज 3 सॉल्यूशन। आपको पता है कि ये y है ना, तो मैंने इन्होंने k की जगह पे y लिखा है। तो ऐसी y की लाइन लगाओ जो कि 3 सॉल्यूशन। स्टार्ट में पढ़ाया था y की लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, ऐसा ही है। जी सर। उन्होंने हमसे लार्जेस्ट मांग रहे थे, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू पॉजिटिव में होती है, किस में होती है? पॉजिटिव। तो बेटा पॉजिटिव में मेरा ग्राफ जो है, अगर आपको नजर आ रहा है इब्राहिम, तो ये 7.5 से क्रॉस कर रहा है, ये टेंजेंट यहाँ पे बनती थी। एग्री और नॉट? जी सर।
अब यहाँ पे तो दो आंसर्स आते हैं ना, क्योंकि एक तो टेंजेंट इस पॉइंट को टच करता और यहाँ पे करता। एग्री? तो जी सर। 7.5 से नीचे 7 आता है, तो 7 के ऊपर ये देखो यहाँ पे 1 2 3 सोल्यूशन आए, यस सर। तो ये लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है मेरा बेटा? यस सर, जिस पॉइंट के ऊपर 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सब कुछ? यस सर। बड़ी मेहरबानी।